Myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we are going to learn chapter number 8, Classes and Objects in Java, part 5. So let's start it, student. So today's topic is inheritance. In previous lecture, we learned access modifier, that is package, private, public and protected. Now in this session we are going to learn inheritance concept. So what is inheritance, students? Object oriented programming languages provide reusability feature using inheritance. It means the inheritance is the concept where we can reuse the feature. That's why it's called the inheritance concept. Inheritance allows us to build new class with added capabilities by extending existing class. Inheritance model is a relationship between two classes. स्टूडेंट ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी टाइम पूछा गया है कि इनहेरिटेंस जो मॉडल है ये कौन सी रिलेशनशिप है, तो ये इज अ रिलेशनशिप है, ये याद रखना है आपको. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम इज अ रूम, स्टूडेंट इज अ पर्सन. हियर रूम एंड पर्सन आर कॉल्ड पेरेंट क्लास. ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे जो रूम है और पर्सन है ये पेरेंट क्लास हो गए, बट क्लासरूम एंड स्टूडेंट्स आर कॉल्ड चाइल्ड क्लास. यानी क्लासरूम के अंदर रूम क्या है, तो रूम ये पेरेंट क्लास है. रूम कौन से भी हो सकते हैं, क्लासरूम हो सकते हैं, बेडरूम हो सकते हैं, राइट. पर्सन में अनेक टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं, अलग अलग नाम के व्यक्ति हो सकते हैं, तो उस टाइप में पर्सन के पेरेंट क्लास हो गया. तो पेरेंट क्लास इज ऑल्सो रेफर टू सुपर क्लास और बेस क्लास. स्टूडेंट ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, पेरेंट क्लास को कौन से नाम से जाना जाता है, तो सुपर क्लास और बेस क्लास. In the same way, child class is also referred to as a subclass, derived class और extended class. उसी तरीके से child class को subclass, derived class और extended class से जाना जाता है. So whenever two classes have is a relationship, we use inheritance. और जब भी दो क्लासेस के बीच में is a relationship होगी तो उस वक्त हम लोग inheritance यूज करेंगे. तो common feature are kept in a super class. A subclass inherit all instance variable and methods from superclass and it may have its own added variable and method. Note that constructors are not inherited in subclass. For example, like room, classroom also has variable length, width, height, number of windows. In addition, it has number of benches and capacity of each bench to accommodate students. Similarly, subclass inherit all method of superclass and it may have additional method. Here, subclass classroom has additional method show, display, get seats and its constructor method. For example, 8.13 shows a class diagram that has a class method. Classroom derived from its parent class named room. See that the arrow points from subclass toward the superclass. In subclass, only additional attribute and method are to be shown. स्टूडेंट, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो और इजीली आपको समझ में आएगा. सिर्फ ये एक बार डायग्राम समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज कैसे होता है. जैसे कि मान लो कि ये रूम नाम का जो क्लास है स्टूडेंट, यह आपका पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है, सुपर क्लास है, राइट. और क्लासरूम जो है आपका ये सब क्लास, चाइल्ड क्लास जिसको बोलते हैं वो है. तो अभी यहाँ से जो क्लासरूम है ये रूम के अंदर के कोई भी वेरिएबल को, कोई भी मेथड को एक्सेस कर सकता है. पेरेंट्स जो होते हैं हम लोग ऐसा बोलते हैं, इन हेरिडिटरी मतलब क्या, तो पेरेंट्स के जीन्स चाइल्ड में ट्रांसफर होना, पेरेंट के जीन्स चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी. तो उसी तरीके से इनहेरिटेंस कंसेप्ट ये बोलता है स्टूडेंट, ये पेरेंट क्लास के कोई भी वेरिएबल हो, मेथड हो, ये चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. So when an object of subclass is instantiated, memory is allocated for all its attributes including inherited ones. So यहाँ पे देखना दो ऑब्जेक्ट बनाए गए, एक रूम का R1 ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लासरूम का CR1 ऑब्जेक्ट बनाया, और इस प्रोग्राम को इन्होंने ये दो क्लास के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. तो स्टूडेंट यह प्रोग्राम पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिकली भी इसको करेंगे. तो देखना स्टूडेंट, यहाँ पे एक रूम नाम का एक क्लास है और दूसरा क्लासरूम नाम का एक क्लास है, राइट. चलो अभी प्रोग्राम समझते हैं. तो रूम नाम के क्लास में स्टूडेंट क्या है, तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड विंडोज,
और एक स्टैटिक यानी क्लास वेरिएबल या टोटल विंडोज, राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट ये यूजर डिफाइंड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना है। अभी कंस्ट्रक्टर कैसे होता है तो इसको हम लोग ने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी। इस पे जिस क्लास के नाम से सेम मेथड बनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, और इसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, एक भी आर्ग्यूमेंटर नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम लोग ने 4 वेरिएबल पास किए और उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट, एंड विंडोज और टोटल विंडोज को असाइन किया है, राइट। उसी तरीके से और एक तीसरा कंस्ट्रक्टर बना है जिसके अंदर हम लोग ने 2 वेरिएबल पास किए, एक लेंथ और दूसरा विड्थ। और उसके बाद स्टूडेंट डबल एरिया। एरिया ये एक फंक्शन है बिकॉज इसके अंदर डबल नाम का डेटा टाइप यूज किया गया है, तो इसको हम लोग रिटर्न करेंगे लेंथ इंटू विड्थ। और एक डिस्प्ले नाम की मेथड यूज की गई है जिसके अंदर लेंथ, विड्थ, हाइट और एंड विंडोज डिस्प्ले होंगे। ओके स्टूडेंट, और जो दूसरा क्लास है वो है हमारा क्लासरूम। तो क्लासरूम क्या करता है स्टूडेंट, तो रूम नाम के क्लास को एक्सटेंड करता है, यानी इसके अंदर स्टूडेंट कितने वेरिएबल है तो n बेंचेस और n सीट बेंच, राइट। ये 2 वेरिएबल को यूज किया गया है। और यहाँ पे क्लासरूम नाम का भी हम लोग ने यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाया है। और क्लासरूम के अंदर देखना अभी यहाँ पे स्टूडेंट लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज, n विंडोज और n बेंचेस और n सीट बेंचेस। अब जबकि यहाँ पे देखना एक सुपर कीवर्ड यूज किया गया है। सुपर कीवर्ड स्टूडेंट तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोग को एग्जिस्टिंग क्लास से यानी पेरेंट क्लास से, सुपर क्लास से कोई वेरिएबल को एक्सेस करना है। अब सबसे पहले तो सुपर यहाँ पे लिखा यानी LWHN, ये कहाँ पे डिक्लेयर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे है LWHN। तो इसको हम लोग ये रूम नाम के क्लास से सुपर कीवर्ड की वजह से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद n बेंचेस और n सीट बेंच ये हम लोग ने यहीं पे डिक्लेयर किए हैं, NB और NSB, तो इसको हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस किया। ओके, अब दूसरा जो है वॉइड शो। तो शो नाम की एक मेथड बनाई है जिसके अंदर सुपर डॉट डिस्प्ले यानी रूम नाम के क्लास के अंदर के जो डिस्प्ले मेथड है सबसे पहले इसको कॉल जाएगा और यहाँ से लेंथ, विड्थ, हाइट एंड विंडोज डिस्प्ले होंगे और उसके बाद बेंचेस एंड बेंचेस डिस्प्ले होंगे और फिर टोटल सीट इन अ क्लास वो डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे भी स्टूडेंट गेट सीट्स नाम का यहाँ पे देखना तो एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें n बेंचेस इंटू n सीट बेंच को रिटर्न करेगा। ओके, और एक डिस्प्ले नाम की मेथड बनाई गई है। तो ये आपके 2 क्लास हो गए, एक रूम नाम का, एक क्लासरूम नाम का। बट दोनों क्लास के अंदर स्टूडेंट मेन मेथड नहीं बनाएगी, तो एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, तो इसका प्रोग्राम जो है पेंडिंग है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे टोटल क्लास जो है वो 3 है, तीसरे क्लास का नाम है इनहेरिटेंस। अब ये प्रोग्राम जब स्टूडेंट आप सेव करोगे तो इसको आपको सेव करना है इनहेरिटेंस नाम से, ओके, बिकॉज मेन मेथड इसके अंदर है। अब सबसे पहले जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा स्टूडेंट तो यहाँ पे रूम नाम का जो आपका पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना है और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया गया है रूम नाम के क्लास का। ये डायरेक्टली इसमें विड्थ, हाइट, लेंथ और एन विंडोज को पास करेगा और इसको स्टोर करेंगे R1 डॉट डिस्प्ले यानी R1 डॉट डिस्प्ले यानी रूम नाम के क्लास के अंदर की जो डिस्प्ले मेथड है इसके थ्रू ये वैल्यू डिस्प्ले होगी, राइट। ये पहला एग्जीक्यूशन। फिर सेकेंड एग्जीक्यूशन क्या होगा, तो क्लासरूम के अंदर वापस हम लोग ने कितनी वैल्यू पास की, 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी लेंथ, विड्थ, हाइट, एन विंडोज, एन बेंचेस, एन सीट बेंचेस। तो उसके बाद CR1 डॉट शो यानी क्लासरूम के अंदर जो शो मेथड है स्टूडेंट इसको कॉल जाएगा और उसके बाद सुपर डॉट डिस्प्ले यानी एग्जिस्टिंग पेरेंट क्लास के डिस्प्ले और फिर एन बेंचेस को कॉल जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एरिया ऑफ क्लासरूम इज CR1 डॉट एरिया प्लस स्क्वायर फीट यानी एरिया ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम 1 का एरिया जो है वो एरिया नाम का जो फंक्शन है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे बनाया गया है, राइट, एरिया। अभी यहाँ पे हमें ये समझना है स्टूडेंट हम लोग इसको कॉल कैसे कर रहे हैं, तो CR1 डॉट एरिया प्लस स्क्वायर फीट। तो एरिया लेंथ विड्थ वहाँ से मिलेगी, लेंथ इंटू विड्थ वो डिस्प्ले होगा। फिर CR2 में न्यू क्लासरूम 30 इंटू 30 इंटू 10 4 10 मतलब अगेन उन्होंने 6 वैल्यू पास किए तो CR2 डॉट डिस्प्ले होगा और बाद में टोटल नंबर विंडोज रोम डॉट टोटल विंडोज ये डिस्प्ले होगा। तो स्टूडेंट देखना यहाँ पे आउटपुट सबसे पहले हम लोगों ने पास की थी 10 15 10 2, तो यहाँ पे आउटपुट आया देखो 20 15 10 2, ओके। फिर हम लोग ने पास की 30 20 12 3 21 3,
तो 13, 20, 12, 3, 21, 3 और उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया गया था एन सीट बेंच का गेट सीट के लिए, तो 21 इंटू 3 द 63, तो वो भी आ गया। और एरिया ऑफ क्लासरूम 1 इज, तो वहाँ पे 20 इंटू 30 600 स्क्वायर फीट, ये भी आउटपुट मिला आपको। और फिर ये फाइनल आउटपुट जिसमें डिस्प्ले नाम की मेथड हुई है, तो क्लासरूम विथ लेंथ इज 30 फीट विथ 30 फीट हैज 20 बेंचेस ईच एकोमोडेट, मतलब ये लाइन स्टूडेंट, ये वाला, ये देखो क्लासरूम विथ लेंथ आ गई, फिर विड्थ आ गई, फिर एन बेंचेस आ गए, बेंचेस इज टू एकोमोडेट एन सीट बेंच भी मिल गए। सो टोटल सीट्स इन अ क्लास इज, जो गेट सीट्स हैं उसके थ्रू टोटल गेट सीट्स मिलेंगे। और फाइनली टोटल नंबर ऑफ विंडोज इज 9, तो ये कैलकुलेट होगा स्टूडेंट, समझ में आया। अब यही प्रोग्राम अगर हम लोग सपोज प्राइवेट मेंबर ऑफ सुपर क्लास यानी प्राइवेट लिखते हैं तो ये आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। अभी यहाँ पे हम लोग को जो समझना है वो है हम लोग का कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन में डिफरेंस क्या है, और कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन एज वेल एज इनहेरिटेंस, ये हम लोग को डिटेल में थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं और फिर हम लोग फाइनली प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर है स्टूडेंट, उसका यूज क्या है। तो as studied before in the topic visibility modifier, protected member are available as private member in the inherited subclass. Modify the instance variable of classroom to protected as follows. So protected float, length, width, height, protected byte and window. When we execute the modified code, we will get the same result as shown in figure 8.15. यानी स्टूडेंट यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है हम लोग को, अगर आप लोग यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड लिखते हो यहाँ पे, तो भी ये एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज इनहेरिटेंस कंसेप्ट में ही सिर्फ प्रोटेक्टेड नाम का एक्सेस मॉडिफायर यूज किया जाता है। ओके, इफ वी चेंज द विजिबिलिटी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ सुपर क्लास टू प्राइवेट, दिस वेरिएबल आर नॉट डायरेक्टली एक्सेस आउटसाइड द क्लास। यानी स्टूडेंट यहाँ पे देखना आप, जब ये इन लोग ने बनाया क्लासरूम, जो एक्सटेंड नाम का कीवर्ड यूज करके रूम अगर एक्सटेंड नहीं किया जाए तो आपका ये एक्सेस नहीं कर सकते। तो तभी भी पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सेस करता है तो एक्सटेंड नाम का कीवर्ड यूज करना कंपलसरी है। सो मॉडिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इन कोड लिस्टिंग 8.2 मेक देम प्राइवेट एज फॉलोज एंड ऑब्जर्व एन एरर इन आउटपुट शोन इन फिगर 8.16। अगर प्राइवेट किया जाए तो यह टाइप का आपको एरर आ सकता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ सुपर क्लास, as studied before in the topic about visibility modifier, protected member are available as a private member in the inherited subclass. Modify the instance variable of classroom to protect as follows. ठीक है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक बार कंपोजिशन एग्रीगेशन भी देखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास दैट इनकॉर्पोरेट द अदर ऑब्जेक्ट दे एस्टेब्लिश हैज अ रिलेशनशिप। स्टूडेंट ये याद रखना, अगर कंपोजिशन और एग्रीगेशन पे पूछा जाए कौन सी रिलेशनशिप यूज होती है तो वो हैज अ रिलेशनशिप यूज होती है, और इनहेरिटेंस में कौन सी रिलेशनशिप यूज होती है तो इज अ रिलेशनशिप यूज होती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल इफ यू डिफाइन क्लास लाइब्रेरी, इट हैज रीडिंग रूम, हियर रीडिंग रूम इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासरूम, दिस लाइब्रेरी हैज अ रूम, व्हेन अ क्लास इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास इट इज आल्सो रेफर्ड टू कंटेनर क्लास। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर हम लोग पहले प्रोग्राम देख लेते हैं तो आपका इनहेरिटेंस कंसेप्ट जो है स्टूडेंट ये आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक बार हम लोग ये प्रोग्राम देख लेते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको ये इजीली समझ में भी आएगा। और स्टूडेंट्स अगर इसका आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आएंगे, आपको ये प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट एमसीक्यू आल्सो इन बोर्ड एग्जाम। सिर्फ आप एमसीक्यू पढ़ के जाओगे तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, आपको कंपलसरी प्रोग्राम प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम स्टूडेंट। सबसे पहले इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में हम लोग ने एक क्लास बनाया था
जिसका नाम है क्लास रूम नाम का। ओके, उसके बाद उसके अंदर हम लोग ने वेरिएबल डिफाइन किए हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल हम लोग ने कौन सा डिफाइन किया है, तो फ्लोट लेंथ। फिर दूसरा वेरिएबल हम लोग ने डिफाइन किया है विड्थ। फिर तीसरा वेरिएबल हम लोग ने डिफाइन किया है हाइट, राइट। और उसके बाद हम लोग ने एक एन विंडोज नाम के लिए एक वेरिएबल लिया, तो उसको मैं लिखता हूँ एन विंडोज, एन विंडोज। उसके बाद हम लोग ने क्लास वेरिएबल डिफाइन किया है स्टूडेंट, स्टैटिक इंट टोटल विंडो। ओके, इसको हम लोग क्लास वेरिएबल बोलेंगे बिकॉज स्टैटिक कीवर्ड है वहाँ पे। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे रूम नाम का एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है, जिसके अंदर मतलब एक भी वैल्यू पास नहीं होती। ओके, उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग 4 वैल्यू पास करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले फ्लोट एल, फ्लोट डब्ल्यू, फ्लोट एच, बाइट एन। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ एल, विड्थ, यानी हर एक को एक वेरिएबल उसका असाइन कर देंगे। फिर हाइट, एच, एन विंडोज, एन टोटल विंडोज प्लस इक्वल टू एन। ओके, वो कंटिन्यू टोटल विंडोज काउंटिंग करते रहेगा, इसलिए हम लोग को टोटल विंडोज देना है स्टूडेंट। और फिर और एक कंस्ट्रक्टर लेंगे जिसके अंदर हम लोग 2 वेरिएबल पास करेंगे। तो पहला वेरिएबल एल, फ्लोट एल, और दूसरा वेरिएबल फ्लोट डब्ल्यू। यहाँ पे स्टूडेंट लेंथ एल, और फिर बाद में विड्थ डब्ल्यू, हाइट 10, एन विंडोज इक्वल टू 1, और टोटल विंडोज प्लस प्लस। एक मिनट, एन विंडोज की वैल्यू उन्होंने क्या लिखी देख लेते एक बार। एन विंडोज लिखा है 1। ओके स्टूडेंट, चलो बराबर है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग ने एक एरिया नाम का फंक्शन लिया है, डबल एरिया, और इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न लेंथ इंटू विड्थ, राइट। और इसके बाद एक डिस्प्ले नाम की मेथड है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लेंथ। यहाँ पे लेंथ को डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद विड्थ, राइट। और विड्थ की वैल्यू चाहिए इसलिए यहाँ पे विड्थ लिखेंगे, करेक्ट स्टूडेंट। और इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन हाइट डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे, ये डबल कोट में, बिकॉज इसमें हम लोग को ये डिस्प्ले होना चाहिए और फिर इसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइट, ओके। और यहाँ पे एन विंडोज चाहिए हमें, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन विंडोज प्लस एन विंडोज। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा रूम नाम का क्लास कंप्लीट हो चुका है, राइट। और यहाँ पे हम लोग दूसरा क्लास बनाएंगे क्लासरूम नाम का, तो क्लासरूम एक्सटेंड्स रूम, यानी चाइल्ड क्लास जो है हमारा वो हम लोग के पेरेंट क्लास को एक्सेस कर रहा है, राइट। ये यहाँ से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो ही वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एन बेंचेस और दूसरा एन सीट बेंचेस, एन सीट बेंचेस। चलो उसके बाद क्लासरूम नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर अभी फ्लोट एल, फ्लोट डब्ल्यू, फ्लोट हाइट, फ्लोट इसका एक एन विंडोज पास करना है, और फिर एन बेंचेस इंट एन भी लिखते हैं इसके लिए, और एक एन एस भी लिखते हैं एन सीट बेंच के लिए, राइट स्टूडेंट, ओके। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल पास हो गए 6, और एक सुपर क्लास से हम लोग 4 जो हैं लेंथ, विड्थ, हाइट और बाइट एन विंडोज उसको एक्सटेंड करेंगे सबसे पहले, मतलब एक्सेस करने के लिए लिखेंगे एल डब्ल्यू एच एन, ओके स्टूडेंट। और इसके बाद एन बेंचेस और इसको असाइन करते हैं, तो एन बेंचेस इक्वल टू एन बी, और एन सीट बेंचेस, एन सीट बेंच इक्वल टू एन एस बी, करेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट शो नाम की मेथड void शो सुपर डॉट डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले नाम की मेथड जो है रूम नाम के क्लास में, उसको हम लोग स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक मिनट, ओके, सुपर डॉट डिस्प्ले, राइट। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन डबल कोट बेंचेस प्लस एन बेंचेस, और यहाँ पे स्टूडेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सीट पर बेंच, सीट्स पर बेंच, बेंच, तो इसका आउटपुट है स्टूडेंट एन सीट बेंच, एन सीट बेंच, यहाँ पे लिखेंगे एन सीट बेंच। और इसके बाद स्टूडेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखना है हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन टोटल सेट इन अ क्लास, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल सेट इन अ क्लास, राइट। इसके बाद प्लस गेट सेट्स,
इसके बाद एक डिस्प्ले मेथड है यहाँ पे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग को टोटल क्लासरूम की लेंथ विड्थ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखते हैं क्लासरूम विथ लेंथ प्लस लेंथ प्लस फीट विथ फीट फीट विड्थ, राइट। सो और यहाँ पे हम लोग को विड्थ चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, उसके बाद प्लस प्लस फीट, डबल कोट में फीट हैज, यहाँ पे प्लस एन बेंचेस प्लस बेंचेस comma is to accommodate plus n seat benches, n seat मैंने क्या लिया, बेंच लिया, बेंचेस नहीं है, ओके। और उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स so total seats in a class is प्लस गेट सीट्स नाम का हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होगा यहाँ पे गेट सीट्स डबल कोट कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन, ओके। और यहाँ पे हम लोग गेट सीट्स नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, इंटीजर गेट सीट्स, राइट। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे इसको, बिकॉज यहाँ पे ये डेटा टाइप है, तो इसको रिटर्न करते हैं। यहाँ पे रिटर्न n benches into n seat bench, ओके। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्लासरूम नाम का जो सेकेंड क्लास है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग मेन क्लास बनाते हैं इनहेरिटेंस नाम का, तो क्लास इनहेरिटेंस ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये हमारा मेन क्लास है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट रूम R1 इक्वल टू न्यू रूम ब्रैकेट ओपन क्लोज 20, 15, 10 और बाइट, इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं बाइट, ओके स्टूडेंट। फिर यहाँ पे हम लोग R1 क्लास को डिस्प्ले करते हैं, तो R1 डॉट डिस्प्ले
फिर क्लासरूम नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लासरूम CR1 इक्वल टू न्यू क्लासरूम, और इसके अंदर स्टूडेंट वैल्यू पास करते 30, 20, 12, बाइट पास किया है कितना, तो 3, उसके बाद 21 एन सीट बेंचेस, एन बेंचेस और एन सीट बेंचेस पास किए 3, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो मेथड डिस्प्ले कर रहे हैं वो है CR1 डॉट शो नाम की मेथड डिस्प्ले होगी, राइट। और इसके बाद फिर से हम लोग क्लासरूम का सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लासरूम CR2 इक्वल टू न्यू क्लासरूम ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं 30, 10 बाइट 4, 20, 4। इसके बाद स्टूडेंट CR2 को डिस्प्ले करेंगे, टू डॉट डिस्प्ले, राइट स्टूडेंट, और यहाँ पे ये कंप्लीट डिस्प्ले नाम का मेथड, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन क्लोज स्लैश एन टोटल नंबर ऑफ विंडोज, टोटल नंबर ऑफ विंडोज प्लस रूम डॉट TOT विंडोज, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसको एक बार सेव करते हैं हम लोग, कौन से नाम से, तो इनहेरिटेंस नाम से, इनहेरिटेंस डॉट जावा, सेव किया, कंट्रोल F7, ओके। 26 नंबर लाइन सबसे पहले देखते हैं, व्यू लाइन नंबर 26 नंबर की लाइन जो है वो बोल रहा है कि डबल एरिया एक्सपेक्टेड, अच्छा यहाँ पे टोटल विंडोज इक्वल टू नहीं आएगा, ++3, ओके। फिर है 76 नंबर की लाइन, 76 पे बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, चेक कर लेते एक बार, क्लास इनहेरिटेंस, इसका ये मेन मेथड का है, इनहेरिटेंस, नहीं ये क्लास है तो इसमें ब्रैकेट नहीं आएगा, टोटल विंडोज 15 नंबर की लाइन, 15 नंबर में टोटल विंडोज कैनॉट फाइंड सिंबल TOT विंडोज, अच्छा विंडोज, 36 नंबर की लाइन, यहाँ पे सिस्टम में आउट, ओके। उसके बाद 16 नंबर में स्टूडेंट, 16 नंबर में जो है इसमें टोटल सीट्स इन ए क्लास, टोटल सीट्स इन ए क्लास, गेट सीट्स में S स्मॉल ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्मॉल करेंगे, और 65 नंबर की जो लाइन है इसमें कैन नॉट फाइंड सिंबल, यहाँ पे N बेंचेस पे, N बेंचेस BNCHES and BNCHES, BNCHES विड्थ, एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल F7,
benches plus NBENCHES, राइट, यहाँ पे लिखा है NBENCHES, करेक्ट, NBENCHES, फिर भी ये एरर दे रहा है, राइट। तो फिर से इसको मैं कॉपी करता हूँ, कुछ मिसिंग ना हो। एक बार लेंथ LENGTH WIDTH NBENCHES, अच्छा सीट बेंच में भी गड़बड़ है, शायद किसी का वो एरर दिखा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे सीट बेंच कर देते हैं, कंट्रोल F7, ओके F5। तो स्टूडेंट देखना, जो आपके टेक्स्ट बुक में आउटपुट आया है वही आउटपुट आपको यहाँ पे मिला होगा, ये रहा आपका आउटपुट, राइट। 20 15 10 2, 20 15 10 2, 13 20 12 3 21, 30 20 12 3 21, फिर एन बेंच, इधर स्पेलिंग का मिस्टेक है इसलिए वो इस तरीके से दिख रहा है, इसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। BEN, ओके स्टूडेंट, सेव करते हैं इसको फिर से, कंट्रोल F7 और F5, राइट। और लास्ट लाइन, classroom with length 30 feet, width 30 feet, has 20 benches, is accommodate the 4 students, and total seats in a class is 80, total number of windows is 9. Clear student? So here our chapter number 8 is completed. Still, if you not practice at home, it's difficult to understand, as well as if you have any doubt, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students, have a good day. In next session we will start chapter number 9.